Good afternoon, bete. All are ready for the class? Yes. Let's see how many of them have joined. Only 9 of them have joined. Till that, children, please be ready with your pen copy. Copy and pen you have to keep along with you. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, bete. Yes, children, are you ready? Take your copy, pen. Yes, ma'am. Yes. आपकी कॉपी पेन आपके पास रखना है, ठीक है? You have to write it down. And let's wait for 1 more minute, then we'll begin the class, है ना? Only 10 participants are there. Yes, 12. So are you ready with your copy, pen, pencil, whatever you require? Ma'am, just a second. हाँ, please. Ma'am, I am ready. Yes. All of you are ready now? Just let's see. हाँ, good. 12 of them have participated, no? I think, na? Yes. So we'll wait for some more to be joined, or we'll start the class. Otherwise, I will start the class later. स्टार्ट करें? यहाँ पर सड़कों पर काफी संख्या में ट्रैफिक जो है वो देखा जा सकता है। गाड़ियाँ, बाइक, बेटा सूर्या आपका सूर्या प्लीज म्यूट योरसेल्फ. सूर्या. Okay, children, all of you please mute yourself. Now I am going to start your class. Beta, all of you please mute yourself, everyone. Dishant, now some of you have not mute yourself. यहाँ पे और कौन है? Yes, सारे बच्चे mute कर दिए हो ना? Very good. Now we will see. Yesterday we have studied this present continuous tense, है ना? Present continuous tense I had share you the and we present perfect also we came across, है ना? Yes बच्चे? Good afternoon, present ma'am. continuous. Good afternoon बेटा. So ये देखो बेटा आपका जो present continuous tense is over. Now already we had jumped into present perfect tense, है ना? Yes or no? Present perfect tense. So I had shared you the screen. So have you written down that? Yes, subject plus has a. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, let me see, please. अब दिखाओ मुझे, वीडियो ऑन करो, म्यूट कर दो अपने आप को और वीडियो ऑन करो एंड लेट मी सी योर कॉपीज. बच्चे दिखाओ मुझे कॉपी अपने जो कुछ भी कल लिखे थे. कोई के बच्चे लिखते नहीं हो ना, दैट्स व्हाई आई वांट टू सी. यस केशव, आपने लिखा है बच्चे? मैंने लिखा है। हाँ, वेरी गुड. जो कल लिखे थे वो मुझे दिखाओ. वो कल वाला ही है। हाँ, ओके नितिन, आई सॉ योर्स. कोई और बच्चे? Yes. Okay, so glancely we'll revise that in glance. Okay, हम present perfect को अभी थोड़ा सा revise करेंगे. Then I will take you. Good afternoon बेटा. Present perfect tense. Yes, present perfect tense हमने कल कर रहे थे ना. So some of them they came to know how to use present perfect tense, and I had given you the definition also.
है ना, डेफिनेशन भी आपको दिया था ना, प्रेजेंट परफेक्ट किसको बोलते, हाउ इट विल बी, है ना। And the present perfect is हाँ a verb tense which is used to show that an action has taken place once or many times before now. यस, हाँ, तो आज हम देखेंगे, नाउ यू विल सी प्रेजेंट परफेक्ट, सम सेंटेंस यू हैड मेड यस्टरडे ना, ही हैज पेड हिज फीस, he has paid his school fees, you had written down na, I had given you, then by yourself you had made some sentences, है ना बच्चे, कुछ सेंटेंस आप लोग खुद ही बनाए थे। Yes, हाँ, ma'am. so now assertive, negative, interrogative, all that you have learned. So do you have any doubt in anything? हाँ बेटा, तो ये जो आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि you will get questions, okay, for exam. So please, if you have not understood, you can ask me. Don't get frightened, otherwise you will lose marks. है ना, फॉर्मेट आपको बहुत अच्छा से सीखना है, क्योंकि सेंटेंस विल नॉट कम एज सेम, इट विल बी डिफरेंट। ठीक है बच्चे, हाँ, सो इफ यू हैव डाउट you have to clarify with me, don't remain without clarifying, ठीक है। हाँ, यस, किसी को डाउट है बच्चे, फ्रीली यू हैव टू आस्क मी, डोंट गेट फ्राइटेंड, अदरवाइज आई विल टीच यू अहेड, मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको, यदि समझ में आ गया देन आई विल टीच यू अहेड। आ गया है ना, यू हैव अंडरस्टूड ना, यस, इफ यू हैव अंडरस्टूड। मैम हाँ बेटा प्रेजेंट बोलो। कंटीन्यूअस टेंस में मैम आईएनजी हाँ। लगता है ना? हाँ बेटा, आईएनजी लगेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जैसे कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, जो वर्ब होता है ना गो, जो गो है तो वो गोइंग हो जाता है ना, आई एम गोइंग, शी इज गोइंग, आईएनजी फॉर्म लग जाता है, वर्ब फोर बोलते हैं ना। इफ यू डोंट वांट टू राइट वर्ब वन प्लस आईएनजी, देन डायरेक्टली यू कैन राइट वर्ब फोर। ठीक है बच्चे, हो जाता है। नहीं बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यू, मैम ये भी प्रेजेंट हो सकता है ना? कंटिन्यूअस, मैम ये भी हो सकता है ना, ही इज विनिंग द मैच। yes, he is winning the match, yes, that is present continuous, he is, Ma'am, he is going to the park. हाँ, he is going to the park, ये भी हो सकता है, that is present continuous, है ना। ओके बच्चे, that is present continuous, हाँ, yes। तो अभी हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का, अभी तो कंटिन्यूअस को समझ में आ गया ना, तो परफेक्ट में भी आपको क्या है ना, हाँ, अभी बेटा आप म्यूट कर दो सारे बच्चे, अच्छा से म्यूट कर दो, हाँ, गुड। सो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, तो परफेक्ट के लिए हमेशा वी यूज हेल्पिंग वर्ब एज हैज और हैव। हम क्या यूज करते हैं परफेक्ट के लिए, हैज और हैव यूज करते हैं ऐसा हेल्पिंग वर्ब, और यू कैन से ऑक्सिलरी वर्ब, है ना। हाँ, वर्ब थ्री यूज करोगे, क्योंकि दिस इज परफेक्ट। परफेक्ट में जैसे कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म इज योर परफेक्ट। मैम परफेक्ट टेंस तो मैम परफेक्ट टेंस तो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं ना। प्रेजेंट परफेक्ट सब में परफेक्ट में, हाँ बेटा, वो जो परफेक्ट जब भी आता है ना, तो यू हैव टू राइट द वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है दिल कुमार, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। मैम प्रेजेंट Form of- परफेक्ट में मैम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है ना? हाँ, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, और आपका हेल्पिंग वर्ब जो होता है हैज और हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यदि वो थर्ड, मैम हैज और हैव, हाँ, तो हैज, कल मैं आपको आई वाज मेकिंग यू अंडरस्टैंड दैट वेयर यू हैव टू यूज हैज और वेयर यू हैव टू यूज हैव, है ना। जैसे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर और नाउन होता है तो हैज यू हैव टू यूज, एंड इफ इट इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड
थर्ड पर्सन में आपको हैव यूज करना है. Yes, ma'am. Like example, he has broken his window. Yes, he has broken his room's window, you can say, है ना. So now it is clear ना. Shall I take other one? Yes. Yes बच्चे. Yes. Yes, ma'am. Okay, then please write it down the date of today. डेट लिखो बच्चे तुरंत फट. Ma'am, present. मैं लिख लिया। हाँ, डेट यू राइट इट डाउन एंड यू फर्स्ट यू पहले बच्चे आप सारे बच्चे म्यूट कर लेना अपने आप को बिफोर यू राइट. म्यूट योरसेल्फ. Ma'am, present perfect. प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट लिखे हैं ना बेटा, अभी मैं आपको शेयर करूंगी, आप उससे लिखना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. सो शैल आई शेयर यू द पीडीएफ. अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, यू हैव टू सी एंड राइट. ओके, ठीक है बच्चे. ओके. Yes, ma'am. मैंने डेट लिख लिया. हाँ, एक मिनट बेटा, मैं आपको शेयर कर रही हूँ, अभी आप उस चीज को लिखोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, फर्स्ट यू हैव टू राइट इट डाउन दैट, देन यू हैव टू राइट द फॉर्मेट, देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, है ना. अभी आपको कुछ बताऊंगी, उसके बाद लिखने के लिए बोलूंगी तभी लिखोगे. ठीक है बच्चे. Yes, ma'am. बच्चों को Ma'am, your voice is not clear. can you see the screen? not clear. Ma'am, your voice is not clear. ओके, ठीक है. हाँ हाँ हाँ, ओके, आई अंडरस्टैंड. ओके, अभी थोड़ा सा जोर से बोलूंगी, है ना. तो क्या आपको ये दिखाई दे रहा है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? अरे बेटा पहले समझो. Yes, ma'am. कल ही बताया मैंने आपको, जंप आउट नहीं करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड, देन ओनली आई विल टेल यू टू राइट. अभी नहीं, मैंने मना कर देती हूँ ना बेटा, पहले समझो. यस, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, the present perfect continuous tense shows that something started in the past and is continuing at the present time. समझ में आया? ये जो है, ये क्या है, वो sometime पहले वो started हो चुका है, शुरू हो गया है. sometime started in the past and is continuing, अभी तक चल रहा है वो काम. ठीक है, फिनिश नहीं हुआ है. that is your present perfect continuous tense. तो आपको लिखना है अभी. ध्यान से सुनो बच्चे, ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग टू मी? Yes, ma'am. यस मैम. Yes, यू फॉलो. आपको कहाँ तक लिखना है वो फॉलो करोगे अभी. द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद ब्रैकेट में छोड़ देना, ब्रैकेट को छोड़ना, ठीक है. shows that something started in the past and is continuing at the present time, उतने ही लिखना है. ब्रैकेट का नहीं लिखना बच्चे, और प्रेजेंट टाइम तक लिखना है. मैम ब्रैकेट वाला छोड़ के प्रेजेंट वाला सब लग. हाँ, ब्रैकेट को छोड़ो. और एक बार मैं पढ़ रही हूँ, आई एम रीडिंग अगेन. द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस shows that something started in the past and is continuing at the present time. Clear? Yes, ma'am. Done. नहीं हुआ. Ma'am, done. नहीं हुआ है? ठीक है, जिसका हो गया बच्चे म्यूट कर दो और चुपचाप रहो. यू जस्ट यू रीड इट बाय योरसेल्फ. जिसका नहीं हुआ है बच्चे लिखो, और जिसका हो गया है जस्ट यू रीड इट बाय योरसेल्फ. उसमें आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, रीड करके देखो. Ma'am, यहाँ तक लेना. The present perfect continuous tense shows that something started in the past and is continuing at the present time. हाँ, बस उतने ही लिखना है बेटा.
यस बच्चे, हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am, done. Done, no? All of you have written down, बच्चे? Children? Yes, ma'am. ठीक Yes, है। ma'am. Now I am going to share you one more thing. Okay? आपको और एक चीज शेयर करूंगी अभी मैं। Wait, huh? Just a minute, wait for. Can you see this? Yes, ma'am. Is it clear? Clearly दिख रहा है बच्चे? Yes. Yes, ma'am. Clear दिख रहा है. Yes, ma'am. हाँ, बीच में थोड़ा सा कट दिया है मैंने, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया बेटा। दैट यू हैव टू बी केयरफुल। हाँ, उसको नहीं मैम लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट ले लिया, लिखो बेटा। देन ओनली आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। अब इसको लिखो, उसके बाद खुद बनाएंगे हम, है ना? मैम कहाँ से? ये मैम कहाँ सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 1 प्लस आईएनजी प्लस सिंस 4। अभी सिंस 4 कहाँ लगता है वो भी समझाऊंगी आपको। मैम कौन सा लाइन मैम? सेकंड वाला? सारे लिखना है बच्चे। यहाँ सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव है ना बेटा, प्लस बीन है, प्लस वर्ब 1 है, प्लस आईएनजी प्लस सिंस 4। इसको लिखने, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब लिखना है। सब लिखना नहीं है बेटा, एक बार असर्टिव लिखो, खत्म करो। असर्टिव हो जाएगा, देन यू विल मेक सेंटेंस, देन नेगेटिव बनाएंगे, देन इंट्रोगेटिव बनाएंगे। हाँ, यस मैम आई एम राइट डाउन। आई हैव राइटेड डाउन, आई हैव रिटन डाउन बेटा, ठीक है? आई हैव रिटन डाउन ये बोलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, I have written down. Now we are studying present perfect continuous tense. We have been studying tense since last week, है ना? Present perfect continuous tense पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक पढ़ रहे हैं, है ना? Yes. I have been written down. I have been writing down. Written down, मैम हो गया। Written down नहीं हो, written down नहीं होगा बेटा। I have been लगाया तो वर्ब में ing फॉर्म। Writing down. आई हैव बीन राइटिंग डाउन, मैं कब से लिखते ही आ रहा हूँ, और अभी खत्म किया मीन्स यू हैव टू से आई हैव रिटन डाउन बोलोगे। दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। हो चुका, अब परफेक्ट हो गया। असर्टिव भी लिख दिया, वेरी गुड। तो देखो एक बार असर्टिव को, ऑल ऑफ यू। हाँ, यस मैम। असर्टिव यू सी, पहले समझो। अच्छा, नहीं लिखे हो, पहले समझो, उसके बाद लिखने के लिए बोलूंगी, देन यू हैव टू शेयर द स्क्रीन, ठीक है? ओके मैम। ओके बच्चे, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैज, है प्लस बीन प्लस वर्ब 1 प्लस आईएनजी प्लस सिंस आर 4। तो यहाँ देखो सिंस हमारा बहुत टाइम के लिए यूज होता है। सिंस मतलब 2 वीक्स से ज्यादा होगा, 1 ईयर 2 ईयर के लिए, है ना, टाइम के लिए। एंड 4, मैम ये वर्ब 3 लिखना है ना? वर्ब 1 है बेटा, 3 नहीं है। वर्ब 1 प्लस आईएनजी है। ठीक है? सिंस, SINCE, सिंस लास्ट ईयर, सिंस मंडे, है ना? तो इस तरह के यूज करना पड़ता है। दे हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 5 hours। यदि आप लोग टाइम को बताओगे तो 4 होगा, ठीक है?
और यदि आप ईयर्स को बताओगे, मंथ को बताओगे तो सीन्स होगा। क्लियर? मैम अब दूसरा लाइन लिखना है। हाँ लिखो। सारे बच्चे म्यूट करना फिर लिखना। ओके मैम दे हैव नॉट बीन वर्क इन 2001 ये वर्किंग। लिखना है मैम। दे हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस 2001। मैम ये भी लिखना है। हाँ लिखो, पूरा लिख लो, उसके बाद वी विल मेक बाय वी विल ट्राई बाय आवरसेल्फ। ओके अभी पूरा लिख लो, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, आपको खुद को बनाने बोलूंगी। थोड़ा जल्दी करना बेटा, हरी अप। मैम राइटिंग नो। मैम लिख लिया। सारे बच्चे खत्म कर दिए लिखकर? हैव यू फिनिश्ड? यस यस मैम। यस मैम डन। नेगेटिव लिखना है। नेगेटिव भी लिखना है बेटा, इंट्रोगेटिव भी लिखना है। ऑल दैट यू राइट इट डाउन एंड यू सिट quietly. What I am sharing you the screen, that you write it down and you sit down quietly. I'll make you understand now. Writing down. You have written down? I'm writing down. Written down होगा बेटा, perfect. Already you have written ना, आप लिख चुके हो ना? So Yes, you have to ma'am. say, ma'am, I have written down. हो गया बच्चे? फिर मैं I will be back to camera. Shall I come? Yes, ma'am. You come. ओके बच्चे सारे लिख दिए तो मैं अभी कैमरा, फिर आई विल बी बैक टू द कैमरा नाउ। ओके फाइन। यस ना? मैम मेरा नहीं हुआ। Oh my god, how long you are taking बच्चे? Yes बेटा, you have not written down till now. So shall I share you क्या मैम? again? क्या मैम? आप अभी तक नहीं लिखे हो? प्लीज सी अभी माय तक नहीं लिखे हो बच्चे? मैम लिख लिया हूँ। हो गया? आगे कोई लिखे नहीं है तो ना, तो मैम प्लीज सी माय वर्क। okay, some of them are still down. Only few lines are there. I don't know. Only one alphabet they are writing or what. मैम योर वॉइस इज वेरी फास्ट। वेरी फास्ट है। ओके फिर धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे बोलो बेटा। आप बताओगे जल्दी बोलती है मैम तो मैं थोड़ा कम करूंगी, है ना? यस मैम। ठीक है, अब बता दिया ना जल्दी बोलते हो मैम, तो मैं थोड़ा धीरे बोलूंगी। आई हैव टू स्पीक एंड आई हैव टू टीच स्लोली ना, ग्रेजुअली। नाउ यू हैव रिटन डाउन, नाउ आई विल बी बैक ना। यस चिल्ड्रन? यस। अभी हो गया ना बच्चे जो बोल रहे थे? यस बेटा? मेरे बच्चे यस कोई मैम। कुछ नहीं बोलते हो गया ना? इतने टाइम लगाते हो बच्चे, रेस खत्म हो गया। जाएगा हम, है ना? रेस विल बी फिनिश ना, तो इतना धीरे धीरे करोगे तो कोई और प्राइज ले लेंगे, है ना? सो ओके नाउ यू सी, आप लोग लिख चुके हो ना बच्चे? सारे बच्चे लिखे हो कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब वन। यू हैव टू लुक एट योर कॉपी। ओके सारे बच्चे कॉपी देखो ध्यान से। वर्ब वन प्लस ing प्लस सीन्स प्लस फोर। अभी देखो सीन्स प्लस फोर, सीन्स जो होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए यूज होता है
और जो 4 होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए यूज होता है। क्लियर हो गया? सिंस जो होता है बेटा वो लॉन्ग टाइम के लिए यूज होता है और 4 जो होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए यूज होता है। Short time. ठीक है? ठीक है बच्चे, डू यू गेट इट? डिड यू गेट इट और नॉट? सीन्स लंबे टाइम के लिए यूज होता है और 4 होता है छोटे टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए यूज होता है। क्लियर है? यस मैम। यस हाँ, मैम। तो अभी क्लियर हो गया आपको? तो आई हैव गिवन यू, मैं आप लोग को ये दिया है ना, क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 1। अब इसको Yes. वर्ब 4 भी बोल सकते हो। वर्ब 4 बोलोगे तो आईएनजी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। Yes, ma'am. अगर जैसे वर्ब 1 कि तो ing लिखने की हाँ जरूरत है। फोर हाँ, लिखेंगे और तो वर्ब नहीं है। 4 लिखोगे तो आईएनजी लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है? तो ये देखो सेंटेंस आई हैव गिवन यू दैट दे हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 5 hours। उन लोग 5 घंटे से उन लोग मेरे वेट कर ही रहे हैं। They had not been working since 2020. बेटा नितिन, 1 मिनट बेटा, पहले समझो, उसके बाद जब मैं बोलूंगी आपको स्पीक आउट करने के लिए देन ओनली यू विल स्पीक। मैम मैम हाँ मैम मेरा बैटरी कम हो गया मैम, जल्दी पढ़ाओ मैं। जल्दी पढ़ाओ बेटा, काम जितना टाइम है ना जल्दी पढ़ाने की कोई ये नहीं है बच्चे। तुम लोग को जब तक समझ में नहीं आएगा आई कांट गो अहेड। Yes, ma'am. यू हैव टू अंडरस्टैंड, First understand. है ना? First I will understand हाँ, and then फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये जल्दी पढ़ाने से कोई ये नहीं है बेटा। फर्स्ट यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट। सो दे हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 5 hours। यू हैव रिटन डाउन दैट सेंटेंस ना, है ना? सो यहाँ देखो उन लोग मेरे लिए कब तक वेट कर रहे हैं, 5 hours, 5 घंटे तक। 5 घंटे तक वो मेरी वेट कर रहे हैं और अभी तक भी कर रहे हैं। they कैसा have समझ में आया बच्चे? for 1 minute and 1 day. हाँ, और यदि आप लोग बोलोगे दे हैव बीन वेटिंग फॉर मी, सिंस लगाया तो यू हैव टू चेंज द टाइम और years or month into years or month. Yes, they have been waiting for me since last year Since or since 2005, और अभी तक 2005 से अभी तक वेट कर रहे हैं। और they have been coming since last year, उन लोग लास्ट ईयर से ये आते जाते हैं, है ना? ओके, समझ में आया बच्चे? नाउ आई विल गिव यू द चांस टू मेक इट। सो नाउ यू मेक वन सेंटेंस एंड हरी अप। मुझे फटाफट पढ़ के सुनाओगे। they have been waiting for me for 1 day. They have been waiting for me For for 1 day. they have been waiting for me When for they 1 have day. been I have waiting for I before have waiting 6 hours. my They have बच्चे ma'am, they बच्चे have एक एक जन बोलोगे। एक मिनट बच्चे, सारे आप लोग म्यूट कर देना, एक एक जन बोलोगे। सारे माइक ऑन करते हो। हु इज रीडिंग, वी कांट अंडरस्टैंड। ओके, ठीक है? टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड वेल, देन ओनली यू स्पीक आउट। ठीक है? ये आकर्षित, व्हाट इज योर सेंटेंस? बच्चे yes ma'am. आकर्षित मेरा, हाँ, नाउ यू स्पीक। I have waiting my gift. हाँ, दैट इज नॉट द करेक्ट सेंटेंस। आई हैव बीन कहाँ चला गया? my gift. Ma'am, I have been waiting for my gift. Yes, I have been waiting for my gifts. I have been waiting for my gifts for 5 minutes. Ma'am, I am waiting for my cycle. ma'am, they are have been waiting for एक मिनट बेटा, दे आर हैव बीन नहीं होता है दिल कुमार।
आप इसको फॉलो करो बेटा, जो मैं आपको फॉर्मेट दिया है उसको फॉलो करो। दैट इज नॉट आर, वेयर फ्रॉम वेयर यू हैव ब्रॉट आर, आप आर कहाँ से लेके आए हो परफेक्ट में? यस बच्चे, इसीलिए मैं आपको फॉर्मेट दिया है, तो ताकि आप उस फॉर्मेट को फॉलो करके आप सेंटेंस बनाओगे। I am being waiting for my relatives for 1 day. ओके हाँ बेटा, दिशांत आप शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो, लेट मी सी योर सेंटेंस। इट इज नॉट विजिबल, बैक कैमरा यूज करो बेटा। लैपटॉप में बैक कैमरा नहीं है। ओ ओके, दे हैव, और थोड़ा सा पास में करो। दे हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 1 minute, what you have written? They have been waiting for me for 1 minute. I am waiting for my relatives. I have been waiting, कहाँ गया बेटा? I have been I- waiting for my relatives for I have been 7 years. one of my friends. यस दिल कुमार, और एक बार पढ़ो बेटा तुम। Ma'am, I have been waiting for my friends. My relatives since 1 year. Yes, I have been waiting for Ma'am, my relatives since they 1 year. Yes बच्चे। Ma'am, I am waiting. I I have am been कहाँ से waiting. आया बेटा? Ma'am, दिल कुमार, I am कहाँ से आया? I have आएगा ना? हाँ बेटा, परफेक्ट में have will come, has will come, am are I कहाँ से लेके आ रहे हो बच्चे? फॉर्मेट देखो बेटा, इसलिए मैं बोल रही हूँ फॉर्मेट फॉलो करो। इज एम आर मैंने लिखा ही हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, नहीं ना? नो, तो क्यों लेके आ रहे हो बेटा आर को? कोई बना रहे हो आर से, कोई एम से बना रहे हो, दैट इज नॉट द फैक्ट। व्हाट आई हैव गिवन यू, यू हैव टू फॉलो। नो Ma'am, they have been waiting for my bicycle. I have been waiting for my gift. I have been waiting for my gift since Ma'am, last Monday. I have been waiting for my gift since 1 year. Since 1 year, yes, correct. ओके हो गया बेटा, असर्टिव हो गया। अभी नेगेटिव देखिए, सारे बच्चे समझ में आया कि नहीं? सारे बच्चों को थोड़ा सा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, थोड़ा सा। मैम सी माय वर्क। ओके प्रिस्का, दिखाओ बेटा आपका वर्क। Ma'am, I understand. You have understood now. Priska, show me your copy beta, you have sent the request na? Yes, you show me your copy. Priska, where are you beta? Ma'am, yes, ma'am. हाँ प्रिस्का, म्यूट कर दो बेटा, अपने आप को म्यूट करो, बहुत आवाज आ रही है। म्यूट कर दो। ओके अभी दिखाओ। ओके, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर। ओके, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, दैट इज करेक्ट। Since Monday, since last night, or you can say since 1 year, है ना? ये से यूज करोगे। ओके, नेगेटिव वन, what you have written down? I have not been writing ना? I have not been writing, और I have not been working since last Monday. मैं लास्ट मंडे से काम ही नहीं कर रहा है ना? कि लिख भी नहीं रही हूँ। I have not been studying. I have not been studying since लास्ट ईयर, मैं लास्ट ईयर से कुछ भी नहीं पढ़ा है। यस चिल्ड्रन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना? यस आकर्षित, यस आई हैव बीन वेटिंग फॉर माय बर्थडे गिफ्ट सिंस 4 days और 4 weeks ना? यस मेरा हाँ बेटा दिखाओ, शेयर करो। यस, आई हैव बीन वेटिंग माय फ्रेंड्स। आई हैव बीन वेटिंग फॉर माय फ्रेंड्स लिखोगे,
किसके लिए यू वेट कर रहे हो? आई हैव बीन वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स, दे हैव बीन वेटिंग फॉर माई गिफ्ट। आपका ये छूट गया है बेटा दिल कुमार। Yes, ma'am. Conjunction. I have not been playing in this during this days लिखोगे, in this days नहीं होता है। I have not been playing this days लिखो, in this days नहीं होता है, ठीक है, इनको हटा देना। और यहाँ पे वेटिंग के बाद आपका 4 लगाना पड़ेगा, FOR 4। Okay, ma'am. ठीक है, अब म्यूट कर दो बेटे। और कोई बच्चे अभी दिखाना चाहते हैं कॉपी? आई हैव नॉट प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1 month। यस करेक्ट है दिशांत। नेगेटिव में है ना? ओके, नेगेटिव इज ओवर। सबको समझ में आ गया बच्चे नेगेटिव? Yes, हाँ, ma'am. तो हम नेक्स्ट करें। इंट्रोगेटिव देखो बेटा, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब 1 प्लस ING प्लस सीन्स 4। इसमें बोला हैज ही बीन वर्किंग एज अ टीचर फॉर 3 years क्वेश्चन मार्क। हाँ बोलो बेटा। ये भी हो सकता है मैम, ये भी हो सकता है कि I have not been going any places in lockdown. Yes, I have not been going to any Any places during lockdown, you can say, or since March or April you can use that। आपका लॉकडाउन कब हुआ है? मार्च अप्रैल पे हुआ है ना? हाँ, since लगाओगे, since मार्च। Okay, ma'am. ओके बच्चे, जल्दी जल्दी बनाओ बच्चे। अब देखती हूँ कौन कौन। हैज शी वर्किंग एज अ टीचर सिंस 7 years? यस करेक्ट। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव पार्टिसिपेटेड। अभिनंदन भी नहीं दिखा रहा है, आकाश भी नहीं, अंकित कोई नहीं दिखा रहे हैं, आशीष भी नहीं है, दिशांत दिखाता है, दिल कुमार भी रेस्पॉन्स दे रहा है, हिमांशु का क्या हो गया वो भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, और आकर्षित दिखाई है, नितिन है, प्रिस्का, ये सारे दिखा रहे हैं। बाकी योगेश भी नहीं, सूर्या भी नहीं। क्या हो गया बच्चे तुम लोग को? शेयर नहीं करने चाहते हो? यू डोंट वांट टू लर्न? यस हिमांशु, क्या हो गया बच्चे आपको? हम न्यू सेंटेंस बनाना है। हाँ, न्यू सेंटेंस बनाना है, इसी का बना के दिखाओ मुझे, इंट्रोगेटिव का। मैम मेरा सही है। हाँ दिखा बेटा। दे हैव बीन वेटिंग फॉर माई बर्थडे। यस सही है, सही है। दे हैव बीन वेटिंग फॉर माई बर्थडे। वेटिंग फॉर माई कंपटीशन फॉर बाइसिकल। बेटा आपका शेयर कर दो स्क्रीन, थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया आपका सेंटेंस। मैं बोलता हूँ। नितिन दिखा दो बेटा क्या लिखे हो। कोई बात नहीं, वेदर इट इज रॉन्ग और राइट यू हैव टू शो, देन यू हैव टू करेक्ट इट ना। हैज शी वर्किंग एज ए प्लम्बर फॉर सिंस। फॉर और सिंस एक ही बार नहीं होगा बच्चे, किसका था अभी?